Hello, my name is Pragnesh and today we are continue with the Viva practice for the Java second year BSc in IT. Although subjects is common to the various streams of engineering or IT or other courses, so that students can also take the benefit of this Viva. The intention is very clear that Viva and the final examinations are coming, so let's prepare for that. All right, so let's continue. Let me share my screen. So I have prepared one list of the questions which I already have uploaded one list. Those who haven't received, you can send the request to our mobile number or WhatsApp number so that we can send it. At the same time, first Viva session ka video if you have not looked at, you can watch that. We will send the descriptions. We will send the link in that descriptions. We will write it down. You can also scan this QR code so that you can directly visit to our channel, and in that you can subscribe so that in future any kind of the video comes, automatically you will get the notification. All right, so let's continue. So when I was preparing for the first list, somehow it's a basic introduction where these questions have been missed. So we covered that in the second list. So what is JDK, JVM and JRE? Now these are crucial. ये वाइवा में आपको आना ही आना है. First common question to ask. To just answer, I'll show you the diagram of our notes. So just go through the diagram very quickly. That helps. A simple diagram that gives the relation between JDK, yeah, this one. So if you look at the innermost component is called Java Virtual Machine JVM. क्या है मैं बताता हूँ. उसके अंदर मैं लाइब्रेरी क्लासेस को ऐड करूँ, दैट बिकम्स जावा रन टाइम एनवायरमेंट. अगर जावा रन टाइम एनवायरमेंट के अंदर इफ आई ऐड सम डेवलपमेंट टूल्स, दैट बिकम्स JDK, राइट. So let's go ahead. JDK क्या है? So it is a development kit which provides me to compile and execute the program. It will also helps me to write a program. So without JDK you cannot compile a program. That's very important. रन कर सकते हो आप विदाउट JDK. जैसे मैंने उसका कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दिया, बट कंपाइल नहीं कर सकते. So now look at JDK is to compile and execute. JRE क्या करेगा? Execute the program. It provides an environment so that you can run without installing JDK का software, right? So ये हो गया आपका JRE. It is basically nothing but the kind of environment. And JVM. तो अभी JVM क्या है? तो Java Virtual Machine is the single component which you required on any computer to execute any Java program without installing the Java software. That's beauty. Without installing Java software, so that जैसे हम Java में बोलते हैं it's a platform independent. How it is platform independent? Because of this JVM, right? So JVM की वजह से वो platform independent है. Now what is API? First of all, API is application programming interface, everyone, right? Now when I say application programming interface, क्या होता है? मतलब आप अगर इंटरव्यू में जाते हो एज अ फ्रेशर, आपको सामने वाला पूछता है कि डू यू नो जावा API, you said no. But at the same time when you go home and look at what is API, कि अरे ये तो मुझे आता है. What is API? Is nothing but the class, interface, methods, fields, constructor and packages. You said ये तो सब मुझे आता है, उसी को API बोलते हैं, राइट. सो API का कलेक्शंस मैंने यहाँ दिया. LANG, util, IO, applet, net, AWT. Now those who are in BSc in IT 4th semester मुंबई यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने LNG हर प्रोग्राम में यूज़ किया, util स्कैनर के लिए यूज़ किया, IO
फाइल हैंडलिंग में फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज़ किया, एप्लेट GUI के लिए यूज़ किया, AWT GUI के लिए यूज़ किया, नेट आपने यूज़ नहीं किया, इट विल कम इन द एडवांस्ड जावा दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज जावा। ऑल राइट, सो दिस इज कॉल्ड योर API। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा, ये आपको पता है, बट देन अगेन स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, ये भी फीचर है, आई एम नॉट सेइंग नो, लेकिन मैं जब भी वाइवा दे रहा हूँ तो आई विल डेफिनेटली गिव माय फर्स्ट फोरमोस्ट फीचर इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बाद इट कम्स माय माइंड मल्टी थ्रेडिंग, देन आई विल से नेटवर्क सपोर्ट, देन आई विल से वेबसाइट सपोर्ट। मतलब नेटवर्क सपोर्ट मतलब इट रन्स ऑन द नेटवर्किंग, राइट? then of course it is provide me encapsulation, abstraction, right, inheritance, polymorphism, सब उसमें है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बोलूँगा तो मल्टी थ्रेडिंग है, देन नेटवर्किंग है, एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दीज आर द 3 कैच पॉइंट्स। ऑल राइट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी थ्रेडिंग? So let's continue how to achieve multi-threading। पहली बात तो what is multi-threading? Consider हम लोग 4th क्वेश्चन पहले करते हैं। Now thread का मतलब क्या? Let's understand। My small part of the program, I repeat, small part of the program is considered as a thread। और if I have a small part of program ऐसे अलग अलग small parts, each is considered as a thread, that is called multi-thread। And if all the threads are running simultaneously, or you can say asynchronously, or you can say parallel, तो उसको multi-threading बोलेंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ, more than one thread runs parallel या runs together or simultaneously is termed as a multi-threading। Each part of the program is termed as a thread। Now how to achieve multi-thread? Again I'll go to the refer my notes and उसमें हम लोग बहुत easily steps देख सकते हैं। Just to find it out quickly to that page, मैं कोई उसका एक मेथड यूज कर लेता हूँ। Okay, let me try once again। Yeah, so here is the thread chapter का notes। How will I understand it's a multi-threading है program? तो मेरा step number 1, how will you achieve है ना। तो पहले तो ये होता है कि you can achieve multi-threading with help of 2 way। 1, using, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, using thread class, मतलब हम लोग एक्सटेंड्स करेंगे, या तो यूजिंग रनेबल इंटरफेस। ओके, ये 2 तरीके से मैं थ्रेड को इनहेरिट कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये देखो, क्लास माई क्लास या जो भी नाम दिया, एक्सटेंड्स थ्रेड, दिस इज द स्टेप नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इनहेरिट्स अ क्लास थ्रेड। सिंस आई एम इनहेरिटिंग, आई कैन ओवरराइड थ्रेड का मेथड। तो मैं थ्रेड का मेथड इज रन, उसको मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। द प्रिंसिपल फॉर द ओवरराइड इज, यू नो दैट यू कैन नॉट ऑल्टर द सिग्नेचर। पब्लिक है तो पब्लिक, वॉइड है तो वॉइड, इंट नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, प्राइवेट नहीं कर सकते। यू हैव टू राइट एज इट इज, द वे इट इज गिवन इन द थ्रेड क्लास। तो मेरा क्लास का नाम थ्रेड है, तो मेरा मेथड का नाम रन, पब्लिक वॉइड रन, ये हो गया मेरा। ओके, अभी नीचे आते हैं मल्टी थ्रेड। मल्टी थ्रेड का मेरा 2 स्टेप हो गया है। पहला स्टेप इनहेरिट क्लास थ्रेड, सेकेंड ओवरराइड रन मेथड, थर्ड create an object of the thread class and call start method। start method क्या करेगा? start method will call run method। that means एक method run
और दूसरा मेथड मेन, दोनों पैरेलल चलता रहेगा. सो व्हेन आई आस्क टू द स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम टीचिंग इन माय रेगुलर लेक्चर कि चलो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, तो बीइंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो मेन में जाके देखते हैं कि ओके चलो पहले स्टार्ट को कॉल किया तो स्टार्ट रन को कॉल करेगा, ये रहा रन, तो मुझे आउटपुट में आएगा आई 1 to 10, मतलब दिस इज माई थ्रेड 1 to 10. फिर वो नीचे आया, नया फॉर लूप चालू हुआ, उसमें लिखा है मेन थ्रेड 1 to 10, तो आउटपुट में आएगा माई थ्रेड 1 to 10 एंड देन मेन थ्रेड 1 to 10. But then this is called your object oriented का knowledge. Multi-threading is one step ahead, and multi-threading says that your output will be parallel. देखो, this is my thread 1 2 आया, फिर main thread 1 2 आया, फिर कुछ और, मतलब दोनों पैरेलल चल रहा है. दिस इज लाइव एग्जाम्पल का आउटपुट. मैंने एक कमेंट्स लिखा है कि आउटपुट में वेरी फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर. ऑफ कोर्स, क्योंकि उस टाइम पे कितना रिसोर्स यूज हो रहा है उसके बेस के ऊपर वी डिसाइड कि भाई आउटपुट क्या है. सो नो वन कैन प्रेडिक्ट. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज जस्ट अजम्पशंस की इसके ऊपर आएगा, बट दोनों पैरेलल चल रहा है वो आपको दिख रहा है. दैट्स कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग. हाउ टू अचीव किया, स्टेप 1 2 3. नेम एनी 3 मेथड्स. अब भी हमने यूज किया स्टार्ट, दूसरा रन, तीसरा ज्वाइन, चौथा सेट प्रायोरिटी, पांचवा गेट प्रायोरिटी, छठा सेट नेम, गेट नेम. मेनी मेथड्स अवेलेबल. रिज्यूम, सस्पेंड. तुम्हें इजी याद रखना है तो कौन सा याद रखूं, स्टार्ट रन. ये इजी है ना, स्टार्ट रन, स्टार्ट किया, रन किया, स्टॉप किया. स्लीप इज इंपॉर्टेंट. Start, run, stop, sleep. These are the various methods. Advantage of multi-threading. Advantage of multi-threading. क्या advantage होगा? The advantage is that we can utilize the resources available. So when I say resources available, what do you mean by that? I have a CPU, I have a processor which is very powerful, but एक साथ एक ही प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ, एक साथ एक ही एग्जाम्पल में मैं यूज कर रहा हूँ, एक ही सॉफ्टवेयर में मैं यूज कर रहा हूँ, और तो एक ही प्रोग्राम एक साथ रन हो रहा है. आई कैन रन द वही प्रोग्राम को 4 सब प्रोग्राम में डिवाइड करके रन कर सकता हूँ. दैट इज द पावर ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. ऑलराइट, सो व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, वो ऑलरेडी हमने कर लिया. सो मल्टी थ्रेडिंग इज डन एवरीवन. Next, and another important topic for Java is exception handling. Now, उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? What is the difference between exception and error? क्या है दोनों के बीच में difference? So the difference between exception and error is that any compile time सिंटेक्स मिस्टेक कम्स, सेमीकोलन इज नॉट गिवन, कैपिटल इज नॉट गिवन, स्मॉल देना था आपने कैपिटल दे दिया, और वाइस वर्सा, दैट ऑल आर टर्म्ड एज एन एरर which comes at compile time. Now you solve all the errors, now you compiled 0 error, now you execute and you got an error, उसको बोलते हैं exception. That means exceptions are runtime errors. Now when I say runtime errors, कंसिडर दैट रन टाइम में मुझे एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है. फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया 5, सेकेंड नंबर 10 करना था, गलती से 0 एंटर कर दिया. दैट मीन्स 5/0 होगा क्या 5/0? नहीं, आपको और मुझे पता है. सो दैट विल थ्रो एन एक्सेप्शन. दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन. सो इतना याद रखो, एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर्स. ओके, नेम द एनी 3 एक्सेप्शन क्लास. हैंडल करते हैं वो क्लास. दिस इज क्रिटिकल, ये आपको पूछेंगे ही पूछेंगे. सो लेट मी राइट इट डाउन. नेम ऑफ द 3 एक्सेप्शन क्लास. नंबर, फॉर्मेट, एक्सेप्शन. ये सिंगल वर्ड होता है, बीच में स्पेस नहीं आता, याद रखना. एरिथमेटिक एक्सेप्शन. array index out of bounds exception. बहुत लंबा नाम है ना,
या यू नीड टू प्रैक्टिस। ये आप अगर वीडियो देख रहे हो तो पॉज करो और 5 टाइम्स बोलो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ओके, गुड। सो दिस आर द क्लासेस। नाउ 3 है तो 3 क्यों लिखूं, मैं एक और लिख देता हूं, एक्सेप्शन इटसेल्फ इज अ क्लास। सो दिस इज द बाय प्रैक्टिस आएगा। अभी के लिए वाइवा नजदीक आ रहा है, इतना याद रखो। गुड। व्हाट इज नेक्स्ट? Can you write more than one try block? Yes, you can, very well. तो उसका स्ट्रक्चर क्या है जरा चेक करो। ट्राई, ओपन, क्लोज, कैच आना चाहिए, उसके नीचे फाइनली आना चाहिए। ये आपका नॉर्मल सिंटैक्स हो गया। आई कैन हैव अ मोर देन वन कैच ऑल्सो, ये वाइवा में बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कैन आई हैव अ मोर देन वन कैच इन अ ट्राई ब्लॉक? यस। कैन आई हैव मोर देन वन फाइनली? नो, पूरे ट्राई के साथ एक ही फाइनली हो सकता है। नाउ अनदर, आई डोंट हैव एनी कैच, इज दैट अलाउड? यस, सब्जेक्ट टू फाइनली होना चाहिए, कंपल्सरी। ओके, अभी मेरा क्वेश्चन कुछ और था। कैन यू हैव मोर देन वन ट्राई? यस, ट्राई के अंदर ट्राई ब्लॉक हो सकता है। ओके, ट्राई के अंदर ट्राई है, उसका कैच, फिर बाहर वाला ट्राई क्लोज हुआ, ये उसका कैच। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर लूप में हम कैसे करते थे, इनर फॉर लूप एंड आउटर फॉर लूप। वैसे कैन यू सी दैट ये कैच कैच साथ में दिख रहा है लेकिन है नहीं। दिस ट्राई का ये कैच कंप्लीट, अभी ऊपर वाला ट्राई का ये कैच, एंड कैच के अंदर क्लास का नाम कंपल्सरी, विच एवर कैच यू वांट टू हैंडल। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई कैच? आउट ऑफ द बॉक्स लिस्ट में नहीं है, मैं अभी भी आपको बताता हूँ। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई कैच एंड फाइनली, पूछेंगे आपको। सो व्हाट यू सपोज टू राइट, try is a block which is used to write the statements which may cause exception, जिसके अंदर एक्सेप्शन आ सकता है, उस सारे स्टेटमेंट्स को ट्राई के अंदर लिखना चाहिए। सिंपल। कैच में क्या लिखना चाहिए? कैच इज अ ब्लॉक विच हैंडल्स द एक्सेप्शन, कैच इज अ ब्लॉक विच हैंडल्स द एक्सेप्शन। ट्राई के साथ कैच आपका हैंडलिंग करता है। नाउ व्हाट इज फाइनली? फाइनली इज द ब्लॉक विच मस्ट एग्जीक्यूट वेदर एक्सेप्शन अकर्ड और नॉट, उसके लिए फाइनली यूज होता है। आई रिपीट, ट्राई कभी यूज होगा? ट्राई हर बार यूज होगा, बिकॉज ट्राई के अंदर ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे जो आपको लगता है कि शायद एक्सेप्शन दे सकता है, जैसे नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, वेयर यूजर कैन एंटर एनीथिंग लाइक नंबर 2 और नंबर 1। Then catch block is the block which handles the exception, and then finally is the block which always executes whether exception occurred or not. तो ये हो गया आपका ट्राई कैच, जो क्वेश्चन में नहीं है, मैंने उधर क्लियर किया। लेकिन नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनली, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इट इज अ ब्लॉक विच मस्ट एग्जीक्यूट वेदर एक्सेप्शन occurred और नॉट। एरर आया कि नहीं आया, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। ऑल राइट, नाउ IO ऑपरेशन, फाइल हैंडलिंग, व्हाट इज दैट? सो द यूज ऑफ स्कैनर क्या होगा? तो स्कैनर का यूज है टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट? दिस इज एन एडवांस क्लास जिसमें मुझे क्लास के बाद इनपुट को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। आई कैन गेट इनपुट इन इंट और फ्लोट और डबल और स्ट्रिंग, एनी फॉर्मेट में। नाउ ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर में आएगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। ऑफ कोर्स इनपुट आउटपुट में तो यूज होता ही है। हाउ टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये वापिस बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। सो आई वुड लाइक टू राइट इट ऑन द टॉप, एंड आई राइट int a इक्वल टू, कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, ब्रैकेट में जो भी आपका इनपुट है वो,
जैसे स्ट्रिंग का s1 मैंने स्टोर किया हुआ है, राइट। अगर मुझे डबल में कन्वर्ट करना है तो डबल डॉट पार्स डबल, this is the way I can convert from int to string to double. Now what is the use of input stream reader and buffer reader? Nowadays ये बहुत कम colleges में कराते हैं because major of the college teach through scanner. These are the various classes available to take the input from the user. तो अगर आपको पूछते हैं कि what is input stream reader and buffer reader, तो basically both are the classes responsible for taking the input from user. ये याद रखो. Okay. Now how to read and write into the file? तो let me give you an example. आपको actually overview पूछा है, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम से आपका काम हो जाएगा. सो व्हाट इज द वे टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड फाइल से कैसे रीड करना है? तो एक होता है फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करो, दूसरा होता है फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज करो. बोथ आर द क्लासेस अवेलेबल अंडर अ पैकेज IO. और ये प्रोग्राम से हम लोग इनपुट फाइल में से रीड कर रहे हैं और आउटपुट फाइल में राइट कर रहे हैं. देयर इज अ मेथड कॉल्ड रीड, देयर इज अ मेथड कॉल्ड right. Okay, good. Next and the last one, that is called applet and event handling. ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने बहुत कम क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किया है, आई नो दैट, but subject to the time availability right now I said let me post this much questions. In the case we will get the time, we will post the another video which covers the again the whole Java मिक्स एंड मैच. कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठा के मैं डेफिनेटली उसको पोस्ट करूंगा. सो एट दिस मोमेंट इफ यू आस्क व्हाट डू यू मीन बाय एप्लेट, सो फॉर मी एप्लेट इज अ स्मॉल विंडो. एप्लेट इज अ स्मॉल विंडो. एक पॉपअप विंडो कैसा आ जाता है, दैट इज अ स्मॉल विंडो, राइट. ओके, नाउ व्हाट इज इवेंट? इवेंट विच इज आउटकम ऑफ एक्शन. जैसे बटन का क्लिक इज एन इवेंट. मैंने कुछ किया तो उसको कुछ एक्शन मिला, राइट. सो इवेंट इज एन आउटकम विद द एक्शन. तो बटन का क्लिक इज एन इवेंट. नेम द वेरियस मेथड्स ऑफ एप्लेट. तो मैं एप्लेट को वापस एक बार गो थ्रू करूँ तो मेरे एप्लेट के मेथड कौन से हैं? तो पेंट इज अ मेथड, स्टार्ट, स्टॉप, इनिट इज अनदर मेथड दैट ऑल्सो यू कैन यूज, राइट. तो मैं यहाँ से कोई एक प्रोग्राम बताऊंगा, आपको आउटपुट के साथ समझेगा. यस, पेंट इज अ मेथड. सो आई हैव init method, I have paint method, right. These are the applet methods. Init method, paint method, ये याद रखो at least, right. So this is the way you can use the applet का प्रोग्राम. applet का कोई आउटपुट अगर यहाँ दिखाया हुआ है तो मैं चेक करके आपको बोलता हूँ. Yes, this kind of the window is nothing but an applet, right. All right, everyone, wish you all the best. If the case you have any doubts, you can post into the comments. If possible, best in the shortest time we will respond, right. Thank you very much for watching this video, and like, share and pass to your friends, those who are doing second year BSc IT or those who are learning Java.